नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ हाजिर हूं। मैं हूं प्रसून। कश्मीर में चुनाव की भनक लगते ही आतंकी कुकुरमुत्ते की तरह पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गए हैं। इन आतंकियों को लगता है कि चुनाव के बाद घाटी में ऐसी सरकार आएगी जो उनकी करतूतों पर पर्दा डाले रखेगी। हकीकत यही है कि 5-6 साल पहले घाटी के राजनीतिक दल ही आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों से बचाने के काम में लगे हुए थे। ये खुलासा और कोई नहीं कर रहा है बल्कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन ने खुद किया है। Argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Hurriyat. This was despite being an open secret that the Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. It was class members to even think of countering these, who vilified everything about the Indian state and its armed forces as part of a deliberate and systematic creation and propagation of false narratives based on half-truths, out of context presentation of facts, malicious selective muting, and amplification and outright falsehoods. SP ranking officers were thrown behind bars and put alongside terrorists in jails for crimes they never committed. Death by accident. By accidental drowning of Nilofer and Asya in Shopian in 2014 was allowed to be hijacked by the narrative terrorism who held the valley to ransom with several weeks long hartal, arson and rioting. A very deep and detailed investigation by CBI backed by forensics of the All India Institute of Medical Sciences proved it beyond any shade of doubt that it was outright falsehood. The things had come to such a pass that the so-called mainstream party had started cultivating leaders of terrorist networks through intermediaries and sometimes directly to further their electoral prospects. It is the unflinching stance and strategy of the Government of India and the armed forces and police and the law enforcement, backed by a latent population since last several years, that this duality and dubious duplicity will be put to an end or an attempt made towards it, which has put the national security adversary in the back foot. It is a call at the highest level of policy making that political and economic opportunities would no longer be the prerogative of a privileged few and would become available to one and all is one major reason why I believe the streets are getting. डीजीपी स्वैन के खुलासे के बाद पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती बैकफुट पर नजर आ रही हैं। उन्होंने सारी आतंकी घटनाओं के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी स्वैन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। With fixing things politically, उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने 15 जुलाई 2024 को IIM में अपने संबोधन में यह खुलासा किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर की एक राजनीतिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में आतंक का नेटवर्क काफ़ी बढ़ाया, नेटवर्क के आका तैयार किए ताकि ऐसी पार्टी को वोट मिल सके। जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जो लगातार आतंक के लिए पैसा और विचारधारा का समर्थन कर रहे थे। पूरा सच यह है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के समाज के हर तबके में घुसपैठ बना ली थी। कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने इस दौरान दोहरा खेल खेला। सुरक्षा बलों और आम जनता को भी इस खेल के कारण सख्ते में आना पड़ा। आतंकियों के घरों पर जाना और उनसे सहानुभूति दिखाना राजनीतिक दलों के नेताओं की सामान्य सी बात हो गई थी। नए आतंकियों को खत्म करने की छूट दी गई, लेकिन जो इन आतंकियों की भर्ती में सहायता करते थे, उनके लिए पैसे लाते थे, उनकी कभी जांच नहीं हुई। जमाते इस्लामी जिसने इस आतंक को वैचारिक और मजहबी मान्यता दी, उसको छूने तक नहीं दिया गया। यह तब किया गया जब सबको पता था कि जमात न केवल सरकार के शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि कश्मीर में होने वाले प्रदर्शनों को भी वित्तीय मदद दे रही है। आतंक के आकाओं पर कार्रवाई करना एकदम अपराध जैसा बना दिया गया, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। ये आतंकी याका तथ्यों को गलत रूप से पेश करके लगातार अपना नैरेटिव चलाते थे और देश के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे। राजनीतिक दलों की मिलीभगत से यह सब कुछ जानबूझकर किया जाता रहा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर घाटी में आतंक का वो काला सच सामने आ गया, जिसकी जद में कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल भी आ गए हैं, जो षड्यंत्र के तहत सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बनाने का काम करते थे। डीजीपी की माने तो एसपी रैंक के अधिकारियों को आतंकियों के साथ जेल में उन अपराधों के लिए ठूस दिया गया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। 2013-14 में 2 लड़कियों की पानी में डूबने से मौत हुई। आतंक के नैरेटिव को हाईजैक कर लिया गया, जिसके बाद पूरी कश्मीर घाटी बंधक बन गई। घाटी को फिरौती, हड़ताल और कई हफ्तों तक दंगों में उलझाए रखा गया। सीबीआई द्वारा एक बहुत ही विस्तृत जांच और एम्स फॉरेंसिक द्वारा सत्यापित किया गया कि यह महज दुर्घटना थी। हालात यहां तक खराब हो गए कि कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए आतंक के नेटवर्क और इनके आकाओं को बढ़ाने तक का काम किया। सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयासों और जनता के समर्थन से ही पिछले 6-7 सालों में यह स्थिति बदल पाई। डीजीपी स्वैन ने यह खुलासा ऐसे समय पे किया है जब जम्मू कश्मीर में आतंक की एक नई लहर दिख रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय सरदाना, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और मोहम्मद अनायत, नेता पीडीपी। मोहम्मद अनायत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अनायत जी, सीधा आरोप आपकी ही पार्टी पे लग रहा है। आप लोग नोट और वोट के कारण आतंक के आकाओं को बचाते रहे। मोहम्मद अनायत जी, आप अपनी आवाज लाउड कर लीजिए, आवाज में थोड़ी सी समस्या आ रही है जी। नहीं, ये बोल रहा है कि जैसे आप जो पीडीपी का इल्जाम लगा रहे हैं, पीडीपी जब यहाँ पे इसमें पावर में थी तो पीडीपी ने बीजेपी के स्पोर्ट के बदल में ही यहाँ पे हुकूमत बनाई हुई थी। तो अगर आप ये इल्जाम दे रहे हैं कि पीडीपी ने किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से वो सारे काम किए हैं जिनके आप इल्जाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस सारे काम में बीजेपी की भागीदार रही है। चलिए विजय सरदाना जी, ये आरोप एपीएन न्यूज नहीं लगा रहा है, ये आरोप जम्मू कश्मीर के मौजूदा डीजीपी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नोट मिलता था, जम्मू कश्मीर में वोट मिलता था, इसी के कारण से पूरा षड्यंत्र रचा गया और एक तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को बंधक बना के रखा इन नेताओं ने। इसमें आपको कितनी सत्यता लगती है?
देखिए, अगर आप 1984 और उसके आसपास या उससे पहले का कश्मीर देखें तो वो एक जन्नत था जी। लेकिन जब 1988-89 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद से आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में शुरू हुई। कश्मीर के किसी भी इंसान से आप पूछ लीजिए कि आतंकवादी घटनाएं कब हुई और कब जो अपना कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा कब और किसने दिया, तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि उस समय जो वहां पे राजनेता थे, जिनको राजीव गांधी ने वहां की इलेक्टेड जो लोग थे उनको हटा के फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार बनवाई। हालांकि वो इस पे बात नहीं करते हैं। कश्मीर का हर व्यक्ति जानता है कि पॉलिटिकल एजेंडा के कारण वहां पे इन परिवारों को सत्ता में रखने के लिए दिल्ली और राज्य सरकार के जो नेता थे उन्होंने मिलके कश्मीर में किसी भी तरह से जो वहां पे पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उनको सत्ता में रखा जाए, और उन्होंने ये डर दिखाया कि अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो कश्मीर हाथ से चला जाएगा। ये जो धमकी दिखाई जाती थी केंद्र सरकार को, इसका ये कारण है जो आज डीजीपी साहब कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वो सच है, और ये जनता, जो कश्मीर की जनता है, वो भी इसको बखूबी जानती है। दिल्ली भी जानता है, वहां के जो लोकल नेता हैं वो भी जानते हैं। तो इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये बात खुल के सामने आ रही है। अभी तक हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन सच बोलने से डरते थे। कम से कम एक पुलिस अधिकारी ने सच बोला, और उस सच्चाई को इस देश को एक्सेप्ट करना चाहिए। विजय सरदाना जी, अगर ये सच्चाई है तो देश के लिए बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के जो बरखुरदार हैं वही षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे में कश्मीर में कहां तक लोकतंत्र पनप पाएगा? विजय जी, देखिए, कश्मीर की जनता कभी नहीं चाहती कि वो आतंकवाद हो वहां पे, क्योंकि देखिए उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनको भी आसानी से रहना है। सिर्फ वो लोग कश्मीर में आतंकवाद चाहते हैं जिनको केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, चाहे वो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट फंड के नाम पे अनअकाउंटेबल पैसा जितना चाहो आप डरा डरा के ले लो, और कुछ सरकारी अधिकारी जिनको आतंकवाद के नाम पे जो घर पे बैठे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। ये दो लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति हो जी। अदरवाइज विजय सरदाना जी, एक और महत्वपूर्ण बात है वो, विजय सरदाना जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका जवाब हम आपसे भी लेंगे, लेकिन इसका पहला जवाब हम लेंगे मोहम्मद अनायत साहब से। 34 दिन में डोडा में 5वीं आतंकी मुठभेड़ हुई है, और इससे ये पता चल रहा है कि घाटी का जो आतंकवाद था अब वो जम्मू की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। भाड़े के आतंकवादी अब उनको चूंकि पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए वो घाटी में नहीं आतंकवाद फैला पा रहे हैं, तो जम्मू की ओर मूव कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपकी सरकार थी तो जमात के ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? डीजीपी यही बार बार कह रहे हैं कि जमात के वो छूने से भी रोक लगाई गई थी आपकी पार्टी के जरिए। अनायत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। फोन कान पे लगा लीजिए अनायत जी, आवाज क्लियर आएगी जी। हमारे प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, मैं आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर में कितने दिन से प्रेसिडेंशियल रूल है, कितने साल से प्रेसिडेंशियल रूल है? पिछले 6 साल से। 5-6 साल में जो सुधार देखे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या आप उससे इनकार कर सकते हैं? जी, पिछले 6 साल से यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल है, और प्रेसिडेंशियल रूल क्या है? ये तो सारा कंट्रोल जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके हाथ में है, और यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो है बीजेपी के हाथ में। तो 5 साल 6 साल पहले क्या हो रहा था उसको तो छोड़ दीजिए। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली हमारी आज की गवर्नमेंट है, उनको ये बताइए कि पिछले 6 साल में आपने क्या किया। अगर किसी फ्रंट पे पीडीपी की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, पीडीपी की आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि जब भी पीडीपी यहाँ पावर में थी तो बीजेपी वॉज अ पार्ट ऑफ इट, बीजेपी उसकी पार्ट थी। और अगर बीजेपी या कोई भी ऐसी पार्टी
या कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति पीडीपी के ऊपर कोई इल्जाम लगा देता है, तो जितना इल्जाम वो पीडीपी के ऊपर है उतना ही इल्जाम वो बीजेपी के ऊपर भी है, फर्स्ट। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई चीज करनी बाकी रह भी गई तो पिछले आज की डेट में उन्होंने क्या कर दिया। और आज यहाँ से आप जो बोल रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की क्या सूरत हाल है, ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। और एक स्टेट की, एक मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर होती है। ये सवाल तो आपको यहाँ के गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए कि यहाँ पे जो आप पिछले इतने बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि वहाँ पे एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट इज हैपनिंग? राय जी, जब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल आपके ऊपर भी खड़ा हो रहा है। समाज के अंदर जहर भरने का काम, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, डीजीपी बोल रहे हैं। पीडीपी ने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पे इशारा आप ही की तरफ था। आपकी पार्टी की नेता ने कहा भी कि डीजीपी को हटा देना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि समाज में जहर भरने का काम और महज दो चीजों के लिए, नोट और वोट। बिल्कुल, समाज में जहर भरने का काम उन लोगों ने किया जिन्होंने गांधी जयंती के, नाथूराम गॉडसे के जो उनकी जन्मदिन के ऊपर पर महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन उनका पुतला बनाया, और जो साध्वी प्रज्ञा देवी जी हैं उन्होंने उसके ऊपर गोली मारी। तो वो कौन सा आपको अपना प्रेम का पैगाम फैला रही है देश में? ये सारी बातें आप गिरिराम जी उनसे पूछिए, ये सारी बातें आप यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब से पूछिए कि वो जहर घोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा इंस्टेंस दे दीजिए कि यहाँ के किसी भी पीडीपी को साइड में रख लीजिए। यहाँ की जो रीजनल पार्टी है जम्मू कश्मीर में, कोई भी जम्मू कश्मीर रीजनल पार्टी का किसी भी आप पॉलिटिकल वर्कर को या स्पोक्स पर्सन का मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए जिन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा जो मुल्क की जो हमारी कम्युनल हार्मनी है उसके खिलाफ होगा। एक कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखा के मुझे दिखा दीजिए which has the capacity to spread the hatred and enmity between the different communities। अच्छा मोहम्मद अनाज साहब, ईमानदारी से बता दीजिए, जमाते इस्लामी के प्रति आपकी सिंपैथी थी कि नहीं थी, या आप उसकी निंदा करते हैं? दो में से एक बात बोल दीजिए आप। जी जी, प्लीज, मैं सुना नहीं। जमाते इस्लामी के कृत्यों की निंदा आप करते हैं या नहीं? किस चीज की निंदा करते हैं? उसके आतंकी नेटवर्क डेवलप करने की, उसके आतंक में शामिल होने की, और उसके यहाँ जो नेता गए उनकी भी। आप मुझे बताइए कि ये मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि ये दिस इज अ स्टैंड ऑफ द पीडीपी। लेकिन हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है मिस महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार बोला है कि जो वायलेंस है, किसी भी प्रकार की वायलेंस है, इट इज अनएक्सेप्टेबल इन एनी मैनिफेस्टेशन। और ये वायलेंस के परपेट्रेटर जो भी हो, उसके जो भी हो, रिगार्डलेस उसका नाम जमात इस्लामी है या कुछ और है, क्योंकि वायलेंस का स्कोप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वायलेंस का कोई स्कोप नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे और मुझे कोई ज्यादा। चलिए, अगर आप अनायत साहब ये भरोसा दे रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक सुकून वाला एहसास होगा। इसमें मैं सिर्फ 2 शब्द और जोड़ूंगा। आपको शायद याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले, मुझे शायद 1-1.5 महीना पहले, जो यहाँ पे जमात इस्लामी है अभी आज की डेट में उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वो अपने मुल्क के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनसे जो बैन है हटा दी जाए। उस समय भी मैंने अपने फेसबुक वॉल पे ये लिखा था कि अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब है कि उनको हमारे मुल्क के जमहूरी निजाम पे विश्वास है, एतमाद है, और उनके स्टेटमेंट को, जिनके हाथ लहू से रंगे होते हैं, उनका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। विजय सरदाना जी, आप इस तरह के चोचलों पे क्या आपकी राय है? क्या ऐसे लोगों को जिनके हाथ खून से रंगे हैं उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने देना चाहिए? विजय सरदाना जी, मैं आपको देखिए, जहां तक कश्मीर की बात है, बहुत सारे लोग आज भी मेजॉरिटी लोकतंत्र में विश्वास करती है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको बंदूक के साए में रहना पड़ रहा है। आज स्थिति ये है, आप कश्मीर में किसी भी लोग से पूछे, बाकी देशों में भी जहां पे भी आतंकवाद है वहां पूछिए, चाहे पाकिस्तान में पूछिए, वहां के लोग भी आतंकवाद जो नहीं चाहते वो अपनी जबान बंद रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने खुल के आतंकवाद का विरोध किया
तो बंदूक की जो नली है वो उनकी तरफ मोड़ दी जाएगी। तो दुख की बात यह है कि अभी भी जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे, देखिए इसमें सबका फायदा है। आतंकवादी घटना होती है तो इससे एक खौफ पैदा होता है और उसका फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। वहां के जो तंत्र है, जो नहीं काम करना चाहते, घर बैठ के तनख्वाह लेना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। उनके लिए भी आसान हो जाता है ये कहना कि देखिए आतंकवाद है, हम ऑफिस जाएंगे तो खतरा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें छुट्टी दे दी जाए, हमें घर से काम करने दिया जाए और तनख्वाह भेज दी जाए। तो कुल मिला के इसके पीछे पूरा इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है इस आतंकवाद के पीछे। आपने ये मुद्दा उठाया कि डोडा में हो रहा है, कश्मीर में नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो जम्मू की तरफ आ रहे हैं। उनको ये पता है कि अगर श्रीनगर में घटनाएं करी तो टूरिस्ट नहीं आएगा, और अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो वहां पे उनके दुकान, होटल, बिजनेस, टूरिज्म नहीं चलेगा। इससे उनका आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए वो कभी भी आप देखिएंगे आतंकवादी श्रीनगर में टूरिस्ट को तंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फंडिंग एजेंसीज हैं, वो सब किसी ना किसी धंधे में लगे हुए हैं। यानी तो आप भी इसीलिए विजय जी ये उन- मान रहे हैं कि ये सब भाड़े के टट्टू हैं और इनको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी है तो अपने सुविधा अनुसार जगह खोज रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अपना कमर्शियल हित, व्यापारिक हित, आर्थिक हित का नुकसान चलिए, नहीं इस चर्चा पहुंचाते। में विजय जी समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।